Assalamu alaikum. Welcome to our translation of one of the famous books in English literature, which you see as one of the great contributions by John Keats. This book I have translated, and I will not go for the characters, which characters are there, because you can get from the readings. So you can watch our introductory lecture about this book. This book is book 1, book 2, and book 3. So I have translated all the books. This is Hyperion by John Keats, translated by Sayyid Hamid Bukhari, copyright to me, but you can write to my email address and you can subscribe my videos in order to get more videos free of cost. So I will start here from book first, Hyperion, written by John Keats. زرد بالوں والا سیٹرن، زرد بالوں والا سیٹرن ایک وادی کے اندھیرے سائے میں بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد اتنے گھنے جنگل تھے کہ صبح کی ہوا اس تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ دوپہر کی سخت گرمی ان گھنے جنگلوں سے گزرتی ہی نہیں تھی، اور نہ شام کے ستارے وینس کی روشنی اس تک پہنچتی تھی۔ وہ سیٹرن ایک پتھر کی طرح حرکت کیے بغیر بیٹھا تھا۔ وہ وہاں اتنا خاموش تھا جتنی خاموشی اس کے ارد گرد تھی۔ جس طرح گھنے بادل تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں درخت تھے۔ اس وقت کی ہوا بالکل بے حرکت تھی۔ بہار کے موسم میں اکثر ایسا ہوا کرتا ہے کہ گھاس میں پائے جانے والے دانے ہوا کی حرکت سے خود حرکت میں آتے تھے اور خود حرکت میں آتے ہیں، لیکن آج نہ تو ہوا حرکت میں تھی اور نہ آج اناج کے دانے حرکت میں تھے۔ اگر اس دن کوئی سوکھا پتا بھی درخت سے نیچے گرا، وہ اس جگہ پر رہا جس جگہ یہ گرا، کیونکہ ہوا کی کوئی بھی لہر اس دن نہیں چلتی تھی۔ اسی طرح ندی جو سامنے سے گزرتی تھی، اس سے کوئی آواز نہیں نکلتی تھی۔ یہ ندی شور کیے بغیر بہہ رہی تھی، اور اس کی خاموشی بڑے دیوتا سیٹرن کے گرنے سے اور بھی بڑھ گئی تھی۔ سیٹرن کی موجودگی سے اس کے ارد گرد وہاں غم کا ماحول دکھ رہا تھا۔ لمبے گھاس کے بیچ میں موجود نہر میں کچھ دیویاں اسی خاموشی کو دیکھنے کے لیے نکلتی تھی، جیسے وہاں پانی میں لہریں اٹھتی تھی۔ سیٹرن اس نہر کے ریت کے کنارے سے چل کر اس جگہ آیا تھا جہاں وہ اس وقت بیٹھا تھا۔ اس کے چلنے سے ریت پر پیروں کے بہت بڑے نشان پڑے تھے۔ وہ اس جگہ بالکل آگے نہیں گیا تھا، جہاں وہ اس وقت بیٹھا تھا، اور وہ پہنچنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ گیلے فرش پر تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت موجود نہیں تھی۔ اس کی ساری طاقت ختم ہو چکی تھی اور یہ کسی مردہ جسم کا ہاتھ دکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جنگ سے پہلے جو طاقت موجود تھی وہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ جنگ میں کھو دی تھی۔
इसकी आंखें इस वक्त बंद पड़ी थी और वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि वो अपनी सल्तनत को देख सके जिस पर वो कभी अकेले हुकूमत किया करता था, या जिस पर सिर्फ उसकी बादशाहत हुआ करती थी। इसका सर झुका हुआ था और ये दिखता था कि वो शायद जमीन, जो कि इसकी बहुत पुरानी माँ है, इंतजार में थी ताकि वो इसके साथ बात करे और इसको मुसीबत के वक्त आराम दे। ऐसा दिखता था कि कोई भी ताकत सैटर्न को इस जगह जहां वो बैठा था उठा नहीं सकती है, लेकिन वहां पर कोई आया जिसने बड़े शफकत के साथ इसके चौड़े कांधों को छुआ और इसके बाद वो इस जगह इसके सामने बड़े इज्जत के साथ झुक जाता है, अगरचे इसको खुद भी वहां जाने के बारे में बेखबरी थी। ये जो वहां आया था ये कोई मर्द नहीं था, ये एक देवी थी और दुनिया की शुरुआती देवी थी जो इतनी लंबी थी कि यूनानी देव पेकर औरत अमेज़न भी इसके सामने बहुत छोटी दिखती। वो इतनी ताकत से भरी थी कि वो अकाइलिस को हरा सकती थी, जो होमर की इलियड में एक बहादुर जवान है। वो इतनी ताकतवर थी कि वो अपनी उंगली से उस चरखे को भी रोक सकती थी जिसके साथ किंग इक्सियोन को सजा के तौर पर बंद किया गया था, जो इसकी जौ की नाफरमानी करने की सजा थी। इस देवी का चेहरा बहुत बड़ा और ऐसा था जैसे स्फिंक्स है। ये मिस्र की एक पुरानी मूर्ति है, इसमें जिस्म शेर का है और सर औरत के मानंद है। ये मूर्ति मिस्र के उस दौर में मौजूद थी जब दाना लोग इल्म हासिल करने के लिए वहां जाते थे। अगरचे इस देवी का चेहरा बहुत बड़ा था, फिर भी इसमें जान थी। इसके दिल में एहसासात इसके चेहरे पर बहुत अच्छी तरह दिखाई देते थे। इसका चेहरा बहुत खूबसूरत था और इतना खूबसूरत कि गम भी इसके चेहरे पर खूबसूरत दिखता था। इसके चेहरे के इजहार बयानात पर इसके चेहरे के इजहार बयानात ये दिखाते थे कि वो कुछ सुनने के लिए बहुत बेचैन थी और उस वक्त ये किसी खतरे का भी इजहार करती थी। इसका चेहरा ये दिखाता था कि इसकी नस्ल पर अब बदकिस्मती की शुरुआत हुई है और ऐसा लगता था कि बदकिस्मती पहले ही गिरी है और अब बदकिस्मती अब हवा तूफान के आने की खबर देता है। एक हाथ से इसने अपने पिस्तान की जगह सीने को दबाया, जैसे इसके सीने में इंसानों की तरह बहुत शिद्दत का दर्द महसूस है। अगरचे वो देवी थी और अबदी जिंदगी रखने वाली थी, फिर भी इसके चेहरे पर इंसानों की तरह गम दिखता था। दूसरा हाथ इसने सैटर्न की झुकी हुई गर्दन पे रखा। तब इसने अपने होंठ हिलाकर सैटर्न के कान तक झुकी और कुछ कहा और कुछ अल्फाज अपनी गहरी आवाज में बोल दिए। ये अल्फाज जो उसने बोले गम से भरे पड़े थे। इंसानों की जुबानें इनकी जुबानों से बहुत आसान है और जो ये बोली जिसका तर्जुमा करना मुश्किल है।
लेकिन जो भी कुछ था वो शायद यूं बयान कर सकते हैं, सैटर्न ऊपर देखो, लेकिन मैं आपको क्यों ऊपर की तरफ देखने को कहती हूं? मैंने आपको कोई आराम नहीं पहुंचाया। मुझे ये भी बोलने का हक नहीं है कि आपको बोल सकूं कि तुम क्यों सो रहे हो और तुम बिल्कुल बेहरकत क्यों हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे कब्जे से जन्नत चली गई है और वहां से बेदखल होने की वजह से जमीन भी तुम्हें पहचान नहीं सकती है। यही हाल समंदर का भी है। आपने अब वो सारी शान खो दी है जो आप में मौजूद थी। जब आपके कब्जे में पूरी कायनात थी, आपके कब्जे में गरज और बर्क जैसे खतरनाक हथियार थे, लेकिन हुकूमत खोने की वजह से ये सब कुछ आप उसके कब्जे में चले गए हैं, जिसकी नातजुर्बा कारी की वजह से कोहराम पूरे आलम हैवानात व नबातात जहां कभी शांति हुआ करती थी तबाही मच गई है। हमारे लिए अब ये वक्त बहुत दुख दर्द का है और इसलिए हर एक लम्हा एक साल के बराबर दिखता है। हर एक लम्हे के गुजरने से हमारी हार की हकीकत और ज्यादा अयां हो जाती है और हार होने की वजह से अब यकीन को गलत साबित करता है। सैटर्न, आप अपनी नींद को बरकरार रख सकते हो। ये मेरी तरफ से बहुत नासमझी थी कि मैं यहाँ आपकी गहरी नींद में खलल डालने आई। इनकी आंखें जो कि गम से भरी हुई, इनकी आंखें जो कि गम से भरी होगी, खुलवाने का कोई मकसद नहीं है। सैटर्न, आप अपनी नींद को बरकरार रख लो और मैं आपके पैरों के नजदीक बैठकर गम के आंसू बहाऊंगी। So dear students, this was our first part. See you in our next part with Sayyid Hamid Bukhari for the translation of Hyperion, book first. So this was part 1, book first. So next part, see you inshallah. So see you in our next part. Thank you.